Hello, friends. Welcome in Persian School. How are you? Fine. Today we will study social science. इसके अगले वीडियो में हमने चैप्टर 2 किया था. चैप्टर 2 में प्रिमिटिव मैन के बारे में जाना था. फिर स्टोन एज, डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील, फायर का इन्वेंशन कब हुआ था, व्हील का कब हुआ था, फिर इसके यूजेस, ये सब हमने पढ़ा था. याद आया आपको कुछ? चलो फिर इसके आगे पढ़ते हैं. Are you ready? Okay, now start. Changing environment. Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world. Due to increase in temperature, vegetation and grass fields started growing in many areas of the world. As a result, number of grass-eating animals, herbivores like deer, sheep, goat, etc., increased. Primitive men certainly got benefits of it. They started studying these animals' behavior and thus their mental development started. चेंजिंग एनवायरनमेंट. करीबन 12,000 ईयर्स पहले पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट में चेंज आया था. वर्ल्ड के कई हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ गया था. टेम्परेचर बढ़ने से वेजिटेशन और ग्रास का ग्रोअप हुआ. इस वजह से ग्रास खाने वाले एनिमल्स लाइक डियर, शेप, गोट बढ़ गए. इससे प्रिमिटिव मैन को बेनिफिट हुआ. They came in contact with grass, trees, vegetation, as well as wheat, barley, and other grains due to climate change. By using stones, women, men, and children collected grains. Because of this curious instinct, slowly agriculture started in India. People started using stones to grow grains. They started growing grains near the banks of the river and constructed their houses made up of mud, thatch, and other materials in the nearby areas. As a result of it, their nomadic life came to an end and started a settled life. The first companion or friend of his settled life was a dog. Besides, he was also familiar with sheep, goat, cow, buffalo, pig, etc. Gradually, they started adjusting with them too. These animals protected them from wild animals. Thus, they associated with animal husbandry also along with farming. However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. इन्वायरमेंट में चेंज आने से ट्रीज, ग्रास, वेजिटेशन के साथ साथ गेहूं, बार्ली और दूसरे धान्य भी ग्रो अप होने लगे. इस तरह एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई. धान्य के बोने के लिए स्टोन की मदद लेते थे. रिवर के पास में बीज बोते थे. मिट्टी के घर बनाने लगे. इस तरह नोमैडिक लाइफ का एंड आने लगा और धीरे धीरे सेटल होने लगे. डॉग उनका सेटल लाइफ का फर्स्ट फ्रेंड था. इसके अलावा शिप, गॉट, काव, बफेलो एक्सेट्रा जैसे एनिमल्स, ये सभी से इनका इंट्रो हुआ. इसी तरह एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री भी स्टार्ट हो गया. सेटल लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. अर्ली लाइफ एंड पेस्टोरल activity transformed primitive man's life into settled life. We know that agriculture land cannot be left over because it takes some time for crops to grow. It needs water and crops have to be harvested when grains are ready. This process led to the beginning of settled life in India. He also started making earthen pots for the storage of grains. As the wandering life came to an end, there was a widespread change in their food habits, clothes, and shelter. Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruits found near their settlements. He lived in houses made up of mud, thatch, and other such materials. He did agriculture. He made farming implements of stone, which included spade, chisel, sickle. The following table shows us the places in India where grains, shelter, weapons, and remains of animals have been found.
ये बात तो हम जानते हैं कि अगर हमको एग्रीकल्चर करना है यानी कि खेती करनी है तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर जो हम बीज बोते हैं तो उससे थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बड़ा होने में। फिर हम क्रॉप को करते हैं, उसमें से दाने निकालते हैं, फिर हमारा ग्रेन रेडी होता है। इस प्रोसीजर में थोड़ा सा समय लगता है और हमें वहीं पे रहना पड़ता है। इस वजह से प्रिमिटिव मैन की नॉमेडिक लाइफ सेटल हो गई। फिर खेती करने लगा। फिर जो ये ग्रेन्स रेडी हो जाते तो उसको भरने के लिए उसने मिट्टी के बर्तन बनाए। खेती के औजार वो पत्थर में से बनाए, उसने स्टोन में से बनाए, जिसमें चिसल, सिकल, स्पेड एक्सेट्रा ये सब उसने बनाए। इसके नीचे एक टेबल दिया गया है, चलो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे प्लेसेस दी गई हैं और कुछ ग्रेन्स, सेटलमेंट्स, वेपन्स, एनिमल्स ये सब दिए गए हैं। जो यहाँ पे प्लेसेस दी गए वहाँ से ये सारी चीज़ें हमको मिली है। जैसे कि फर्स्ट वाला है मेहरगाद, अभी पाकिस्तान में है, पर यहाँ से हमको वीट, बार्ली, शिप, गॉट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स। फिर कोलड़ी आवा है यूपी से, राइस, बोन्स ऑफ एनिमल्स। फिर महागढ़ा है यूपी में, राइस, शिप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स। उसके बाद है लांघाज जो गुजरात में है, ह्यूमन सेटलमेंट, राइनो। उसके बाद है बुजोरम एंड गुफक्राल कश्मीर में है, वहाँ से हमको वीट, लेंटिल, डॉग्स एंड पेट हाउस। उसके बाद चिरांद जो बिहार में है, वहाँ से हमको बफेलो, बुल इम्प्लीमेंट्स ये सारी चीज़ें हमको इन जगहों से मिली हुई है। We get information about their human settlements and cattle rearing from places like Burjhom, Gufkral, Hurangi, Mehergarh, Langhaj and Bhimbetka, which were discovered by our archaeologists. From places such as Mehergarh and Inamgarh, we even get information about their houses and farming. They used to grow grains like barley and bajra. Sharp stone implements have been found from places like Mehergarh and Inamgam. These might have been used for farming. Mehergarh may be considered to be the oldest village of ancient India. You see Mehergarh in the map. Farming of barley and wheat started from here. They reared sheep and goat. They did farming and stored grains. Bones of animals have also been found here. They lived in rectangle houses. Small barns have also been found in these houses. पुराने ज़माने में मेहरगढ़ इंडिया का सबसे पुराना गांव है। यहाँ पे लोग बार्ली एंड वीट की खेती करते थे। वो शिप और गोट को पालते थे। खेती करके फिर जो अनाज के दाने स्टोर करते थे। यहाँ से एनिमल के बोन्स भी मिले हैं। वो लोग रेक्टेंगल हाउसेस में रहते थे। उनके घरों का शेप कैसा था? रेक्टेंगल जैसा। उन घरों में धान का स्टोर भी किया था। वैसे भी एविडेंस हमको मिले हैं। According to the evidence found in Mehergarh, they honored the dead by burying them. Many such evidence have been found here. Evidence has been found at one place that goat was also buried along with men. This suggests their belief that there is life after death also. मेहरगढ़ से ये भी जानने को मिला कि इंसान के मरने के बाद उसे दफनाया जाता था। और एक जगह तो ऐसा भी मिला कि इंसान के साथ गोट को भी दफनाया गया था। In the same way, a place named Inamgarh has been found in Maharashtra, from where remains of dead bodies of children have been found. They lived in round-shaped houses, reared cattle, and did farming of bajra and barley. महाराष्ट्र में से इनामगाम की जगह भी मिली। वहाँ से बच्चों की डेड बॉडीज मिली है और ये भी जानने को मिला कि वो लोग सर्कल शेप के घरों में रहते थे।
पशुपालन भी करते थे, फार्मिंग बाजरा और बरली की करते थे। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। चलो अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है एमसीक्यू का। फर्स्ट वाला है, हाउ वॉज प्रिमिटिव मैन्स लाइफ? नोमैडिक लाइफ, सेटल्ड लाइफ, टाउन सेटलमेंट लाइफ एंड विलेज सेटलमेंट लाइफ। चलो बताओ क्या आएगा। प्रिमिटिव मैन की लाइफ कैसी थी? नोमैडिक थी, सेटल थी, या फिर विलेज में सेटल थी, टाउन में सेटल थी? तो ये तो बिल्कुल ईजी है, नोमैडिक लाइफ थी उसकी। नेक्स्ट है, विच वेपन वॉज नॉट यूज्ड बाय प्रिमिटिव मैन टू हंट एनिमल्स? जो प्रिमिटिव मैन था वो कौन से जो टूल्स थे या कौन से जो वेपन्स थे वो यूज़ नहीं करता था? फर्स्ट वाला है गन, स्टोन वेपन्स, वेपन्स मेड ऑफ बोन्स, वुडन वेपन्स। चलो याद करो, तो उसका आंसर आएगा गन। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज भीमबेटका सिचुएटेड? भीमबेटका कौन से स्टेट में है? चलो ये तो आपको आ ही जाएगा, मैं उसके ऑप्शन बताती हूँ आपको। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। चलो जल्दी से बताओ। ओके, मैं बताती हूँ। फर्स्ट वाला आएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटीज वेर नॉट स्टार्टेड बाय प्रिमिटिव मैन? फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, ग्रेन स्टोरेज, इंडस्ट्रीज। उसका आंसर आएगा इंडस्ट्रीज। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वाला है, प्रिमिटिव मैन स्टार्टेड रेयरिंग वायलेंट एनिमल्स विद द बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। तो चलो सोचो क्या आएगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फर्स्ट वाला है फॉल्स। नेक्स्ट है, स्टोन इम्प्लीमेंट्स वेर यूज्ड इन स्टोन एज। ये तो आपको आ ही जाएगा, ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो हमने अभी भी पढ़ा है। इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है, प्रिमिटिव मैन हैज़ ड्रॉन पिक्चर्स ऑफ लायन एंड टाइगर इन भीमबेटका। चलो ये तो आपको आ ही जाएगा, भीमबेटका में लायन और टाइगर के पिक्चर्स थे? नो, तो ये है सेंटेंस फॉल्स। नेक्स्ट है, नेचुरल कलर्स हैव बीन यूज्ड इन कैव्स ऑफ भीमबेटका टू ड्रॉ पिक्चर्स। तो ये तो सही है, ये तो ट्रू आएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया? अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं चैप्टर 9 के साथ।